तो लास्ट क्लास के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, जो नोट्स बचे हुए थे हमारे पास उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। लिखें द लैक ऑफ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ द लैक ऑफ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन ब्रैकेट में लिखें आई जीन, वन रेगुलेटरी जीन ब्रैकेट में लिखें आई जीन, एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन सी, Z, Y एंड YA, ठीक है, ठीक है। चलिए इसमें लिखें आई जी के बारे में लिखें आई जी का क्या नाम होता है, उसमें ना लिखिए, इसमें लिखिए नंबर 1, ठीक है। आई का क्या नाम होता है, आई के आगे लिखें फॉर रिप्रेसर ऑफ लैक ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। Z के आगे लिखिए नंबर 2, ये पेपर में आएगा मुझे पता है इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। Z के आगे लिखिए फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, चाहे तो डायग्राम में लिख सकते हैं बीटा गैल, BGAL बीटा गैल that catalyzes the hydrolysis of lactose into glucose and galactose, that catalyzes the hydrolysis of lactose into glucose and galactose, ठीक है। इधर लिखें आई हो गया, Z हो गया, Y लिखें, इसमें लिखें क्या करता है Y परमीएस, लिखिए फॉर परमीएस that increases the permeability of the cell, ठीक है। और लास्ट में आई ए लिखिए फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है जी। yes sir. ठीक है, एक साल आगे कौन लिख लें, lactose is a substrate for the enzyme, beta galactosidase, substrate for the enzyme beta galactosidase, and it regulates switching on and off of the operon, full stop. Hence it is called as inducer, इसमें इसको क्या कहते हैं, इंड्यूसर कहते हैं, ठीक है। ठीक है जी, आया, ठीक, आगे लिखें, मतलब ये खत्म होता है, मतलब इतना पार्ट में कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपेरॉन काम कैसे करता है, ठीक है। तो लिख दें इसमें लिखें
इसको मैं कैसे लिखूंगा, मुझे वाली समझ नहीं आ रही। आप इसको ऐसे लिख लें, मैं लैक्टोज इज एब्सेंट ऐसे लिख लें, ठीक है। मैं लैक्टोज इज एब्सेंट। सोमवार इतना लिखा से आ रहे हैं क्लास में। देखिए मैं लैक्टोज इज एब्सेंट, मैं लैक्टोज इज एब्सेंट इसमें लिखें, इसमें लिखें, देखिए आईजीन, आईजीन, आईजीन produces, IgE produces repressor, repressor protein. IgE produces repressor protein, repressor protein, and it binds with, and it मतलब यहाँ पे repressor protein की बात करेंगे, and repressor protein है इसका, and it binds with the operator region, the operator region, operator region of the operon, of the operon, of the operon, so that, so that, so that RNA polymerase, RNA polymerase cannot bind, cannot bind, cannot bind, cannot bind on promoter, cannot bind on promoter, cannot bind on promoter, and transcription, and transcription of Z, Y, and A gene, and transcription of Z, Y, and A gene, transcription of Z, Y, and A gene, genes does not occur, does not occur. Full stop, full stop. Hence, hence, beta galactosidase, hence beta galactosidase, beta galactosidase is not formed, is not formed. अंतर नहीं, ठीक है पक्का। अब लिखते हैं in the presence of, in the presence of, in the presence of lactose, in the presence of lactose, ठीक है। इसमें लिखें lactose acts as, lactose acts as inducer, 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 and binds with the repressor, and binds with the repressor protein, binds with the repressor protein, making it, making it, making it inactive. Please repeat this. So, making it inactive, making it inactive, and therefore, and therefore, and therefore, it does not bind, and therefore it does not bind with the operator, with the operator region, with the operator region. ठीक है, full stop. This allows, this allows, this allows RNA polymerase,
RNA polymerase, RNA polymerase RNA polymerase to transcribe to transcribe to transcribe to transcribe Z, Y, and A gene, Z, Y, and A genes, Z, Y, and A genes. Full stop. Full stop. Hence, all enzymes are formed. Hence, all three enzymes are formed. Hence, all three enzymes are formed. करा? देखा जी? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. एक बच्चा मेरे से कुछ पूछा था बीच में. भाई बताओ सर हम लोग कौन सा पॉइंट छूटा है आपका? एक बार बताना मेरे को. So before making it inactive, मैंने क्या लिखवाया था? Lactose acts as inducer. हाँ रणदीप एक बार ना बहुत आराम से रिपीट कर दो इन पॉइंट्स को जो मैंने लिखवाया है, सो दैट अगर किसी को छूटा हुआ है तो वो लिख लेगा. यार एक्चुअली ना मैं इसको अपने हिसाब से बोल रहा था, ठीक है? तो मेरे को जाऊंगा तो मिस हो जाएगा मुझे, ठीक है? रणदीप एक बार Sir, presence of lactose से करना है या फिर शुरू से? नहीं शुरू से मत करो, वहां से कर दो. Hence beta galactoside is formed, is not formed. ये लिखवाया था ना, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वहां से रिपीट कर दो. In the presence of lactose. हाँ ये headline है. Lactose act as inducer and binds with the repressor protein, ओके. making it inactive. lactose acts as an inducer and binds to the repressor protein. ठीक है? आगे. okay. And आगे. making it inactive. हाँ. And making it inactive. And making it inactive. Okay, continue. And therefore it does not bind with the operator region. Okay. So therefore it does not bind with the promoter region. ठीक है? Promoter region से वो bind नहीं करता. आगे. This allow RNA polymerase हाँ. to transcribe Z, Y, and A gene. Okay. ठीक है? तो Z, Y और gene को transcribe करता है और इस वजह से तीनों के तीन एंजाइम्स बन जाते हैं. And therefore all the three enzymes are formed. ये लिखा है. ठीक है? भाभी का लिख लिया? Yes, sir. ठीक है. चलो. आगे आते हैं. ठीक है? तो भाई ऐसे काम कर रहा है. ठीक है? अब सुनो मेरी बात को, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है? कि लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर कौन होता है. ठीक है? और ऑप्शन में आता है हमारे पास से लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है? तो ऐसे रहेगा. बताना जरा. इंड्यूसर पूछा गया. इंड्यूसर अरे बोलो. Lactose. लैक्टोज विद आंसर. ठीक है? एग्जाम में आ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूसर ऑफ लैक ऑफ इनॉन. और यहाँ पे आपने रखा है एलो लैक्टोज. क्या रखा है? एलो लैक्टोज. आंसर क्या आएगा? Lactose. Lactose. नहीं. अगर लैक्टोज और एलो लैक्टोज में से अगर आपका चॉइस है, ठीक है, सो द मोर एक्यूरेट आंसर इज एलो लैक्टोज. ठीक है? ये ऐसा सवाल सब रीजन पूछा जाएगा, आपके सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा. पूछा जाएगा एक क्वेश्चन के लिए. मैं बता दे रहा हूँ कि इंड्यूसर दरअसल लैक्टोज नहीं होता. लैक्टोज की अलग डिफरेंट फॉर्म होती है, जिसको मैं कहता हूँ क्या? एलो लैक्टोज. क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलो. Allolactose. लैक्टोज. ठीक है? लैक्टोज इज नॉट एक्चुअली द रियल इंड्यूसर. ठीक है? द रियल इंड्यूसर इज द एलो लैक्टोज. ओके? देखो ऑप्शन देख लो. लैक्टोज, ग्लूकोज और एलो लैक्टोज. तो यहाँ पे मेरा चॉइस थी एलो लैक्टोज और लैक्टोज में से एक को चुनने की. ठीक है ना? क्योंकि चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव. तो ये तो नहीं हो सकता. अरे हाँ या ना? ठीक है? Yes, sir. तो आंसर क्या माना? क्या क्या टिक करा मैंने? एलो लैक्टोज. पर अगर गलती से
अगर गलती से एक डी ऑप्शन की जगह एक अलग ऑप्शन होता, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा होता लैक्टोज एंड एनोलैक्टोज lactose. करता तो मेरा आंसर जाता ई। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? Yes, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। So क्यों? what is allolactose? एनोलैक्टोज इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैक्टोज, ठीक है। केमिकली उसकी जैसा ही होता है, ठीक है, फॉर्म अलग होती है, एक तरह का आइसोमर है उसका, ओके। So remember that when there is a choice between allolactose and lactose, you have to choose allolactose. When you have a choice, but there is the option, यहाँ पे लिखा होगा lactose and allolactose both, ठीक है। So आपने लिखा lactose and allolactose both। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? Yes, sir. नोट करो उसको, नोट कर लो। सो रफ में क्वेश्चन लिखे फटाफट। इंड्यूसर फॉर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, फटाफट लिखो और मार्क करो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? शीतल, मैंने यहाँ पे बोला है, शीतल देखो आपके पास है 4 चॉइस है, मान लो ए, बी, सी और डी। मैंने आपको लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इंड्यूसर किसको पढ़ाया है? क्या बोला मैंने? कौन इंड्यूसर? लैक्टोज। क्या बोला मैंने? लैक्टोज, ठीक है। आपके पास कोई भी ऑप्शन दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, आंख बंद करके आपने क्या मारना है? इस पे टिक मारना है, लैक्टोज। ये तो मैंने पढ़ा रखा है। यस सर। ठीक है। मैंने बोला कि अगर ऑप्शंस में कुछ भी ऑप्शन दे रखा हो, लैक्टोज बी सी डी, ठीक है ना, सी में आपको या बी में आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो एलोलैक्टोज, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? तो आंसर लैक्टोज में जाके क्या आंसर जाएगा? बोलना जरा। हाँ, एलोलैक्टोज। अगर यहाँ पे ऐसे कुछ सुक्रोज है रखा है, यहाँ पे कुछ ग्लूकोज है रखा है, ठीक है, ठीक है, तो आंसर विल बी द मोस्ट एलोलैक्टोज। आंसर इज एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज। बेटर ऑप्शन, ठीक है। ओके पर सर। अगर जैसे यहाँ पे दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो आंसर क्या जाएगा? ए एंड बी। दिस इज व्हाट आई हैव सेड, ओके। ओके सर। चलिए नोट कर। हमारी बॉडी में ना बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको फिर से अलग से बातें बता रहा हूँ, उनको आप सुनते रहो, ठीक है। देखो यार, लैक ऑपेरॉन को डिफाइन किया था बैक्टीरिया में सबसे पहले किसने? 2 साइंटिस्ट, का नाम था क्या? जैकब एंड मोनार्ड। क्या नाम था? जैकब एंड मोनार्ड, ठीक है ना। इन्होंने डिफाइन किया किसको? लैक ऑपेरॉन को। डिफाइन किया, अरे बोलो किसने डिफाइन किया? लैक ऑपेरॉन। Lack of iron. ऐसे हमारी बॉडी में एक और ऑपेरॉन भी होता है, क्या कहते हैं? टीआरपी ऑपेरॉन। क्या कहते हैं उसको? टीआरपी TRP operon. ऑपेरॉन। इसको हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन, बेसिकली क्या कहते हैं? ट्रिप्टोफैन वाला ऑपेरॉन। कौन सा ऑपेरॉन? Tryptophan. एक अमीनो एसिड होता है हमारी बॉडी में, उस अमीनो एसिड को हमारी बॉडी बनाती है। क्या करती है हमारी बॉडी? उस ऑपेरॉन को, मतलब उस ऑपेरॉन के तहत ट्रिप्टोफैन को हमारी बॉडी बनाती है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है। जैसे Yes. मान लो ये एक जीन होती है, इसको कहते हैं टीआरपी जीन। क्या कहता हूं मैं इसको? बोलो। टीआरपी जीन। TRP gene. टीआरपी मतलब कि ट्रिप्टोफैन खत्म हो जाता है तो टीआरपी जीन काम करती है और करके क्या बना देती है? इसकी प्रोडक्शन करती है। अरे बोलो, ट्रिप्टोफैन की, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे ट्रिप्टोफैन कब बन रहा है? ट्रिप्टोफैन कब बना हमारी बॉडी में? जब बॉडी में ट्रिप्टोफैन ज्यादा था, या बॉडी में जब ट्रिप्टोफैन कम था या नहीं था? कब बन रहा है? नहीं था. जब नहीं था, ठीक है। जब ट्रिप्टोफैन नहीं था तब हमने इस ओपेरॉन में क्या किया? ऑन किया और हमने ट्रिप्टोफैन बनाया, ठीक है। और जब ट्रिप्टोफैन बन गया होगा तो ऑब्वियसली बात है कि यार ये जो ओपेरॉन है क्या हो गया होगा भाई? ये बोलो, बंद हो गया होगा। बंद हो गया. अरे समझ आ रही मेरी बात? Yes sir. नहीं आ रही? सर आ रही है. क्लास में हो आप? क्या कुछ प्रॉब्लम इनको आ रहा? अंशिका क्लास में हो? शालम यस सर। समझ आई बात? हाँ, टीआरपी ओपन कब काम करता है? जब कम होता है टीआरपी। जब ट्रिप्टोफैन कम होता है बॉडी में, नहीं होता तो उसको बनाने के लिए बॉडी में
काम करता है। ठीक है लावण्य बेटा मैं समझ गया। ठीक है आपका माइक खराब है। ठीक है तो ऐसे ओपेरॉन में क्या कहते हैं पॉजिटिव ओपेरॉन या पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ ओपेरॉन। ठीक है तो हम इसको पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ ओपेरॉन। ठीक है बट लैक ओपेरॉन में ऐसा नहीं है। ठीक है लैक क्योंकि देखो यहाँ पे टीआरपी नाम है तो ट्रिप्टोफैन को बनाना चाहिए ना ओपेरॉन को। अगर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन काम कर रहा है तो ट्रिप्टोफैन बनना चाहिए बॉडी में आया ना और बन रहा है। तो ऐसे ओपेरॉन को कहता हूँ क्या मैं पॉजिटिव ओपेरॉन। क्या कहता हूँ मैं ऐसे ओपेरॉन को? अरे बोलो Positive operon. पॉजिटिव ओपेरॉन। ठीक है पर लैक ओपेरॉन में क्या होता है कोई बता सकता है? व्हाट हैपेंस विद द लैक ओपेरॉन? अरे भाई बोलो क्या होता है? लैक ओपेरॉन में जब लैक्टोज बॉडी में ज्यादा होता है तब जाके क्या करता है, तब जाके ये ओपेरॉन जो है काम करता है और एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो बेसिकली लैक्टोज को तोड़ देता है। क्या करता है? लैक्टोज को Break करता है. ब्रेक कर देता है। तो इस ओपेरॉन के काम करने के बाद लैक्टोज की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो हो रही रही है. कम हो रही है। ठीक है तो ये काम कब करता है? जब लैक्टोज ज्यादा होता है और चालू होने के बाद क्या कर देता है उसको ये कम कर देता है। तो ऐसी रेगुलेशन को कहते हैं क्या? नेगेटिव रेगुलेशन। क्या कहते हैं इसको? बोलो Negative Negative regulation. ठीक है तो अगर पेपर में सवाल आ जाए कि रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन इज कंसीडर्ड एज व्हाट तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ओके एक पॉइंट लिख लें। देखिए रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरॉन by a repressor is referred to as negative regulation समझ आई भाई मेरी बात? Yes, sir. दिक्कत तो नहीं है? No, sir. पढ़ जाए रणदीप? Yes, sir. चलो So ये खत्म करो। ठीक है आगे बढ़ो। the rest all operons are positive. No, there are certain operons that are positive, there are certain operons that are negative. Okay, Okay, sir. but lac operon is the most basic type of operon, so we have studied this one. Okay, sir. Okay, so majority of the topic of this chapter has been over. Okay, congratulations. We have completed the structure of DNA. We have completed what? Packaging of DNA. We have completed all 4 experiments. याद है कौन-कौन से? Griffiths experiment, McCarthy, Hershey and Chase. Hershey and Chase experiment, and Mendelssohn and Stark experiment. Done? अरे बोलो हाँ है ना? Yes, Yes, sir. After that, we have completed the process of DNA replication. Continuous discontinuous strand वाला part पूरा हो गया हमारे पास. ठीक है? Then we move to the transcription. First, we complete the transcription unit. Why both the strands of the DNA does not code for the RNA. Okay. Later, we move to the type of template strand and the coding strand. उसमें difference समझा हमने. ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे transcription में process पे. RNA, DNA dependent RNA polymerase क्या होता है, कैसे काम करता है, हमने वो समझा. Okay. फर्दर हम चलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में। हमने कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग के बारे में समझा। ठीक है फिर हम आगे बढ़े। हमने पढ़ा सिस्ट्रॉन क्या होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। याद आ रहा है? अरे हाँ ना? Yes. Yes, sir. फिर हमने पढ़ा क्या? कोडॉन। क्या पढ़ा हमने? कोडॉन। कोडॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। याद है? एमबीसीएस होते हैं। ठीक है और क्या होते हैं? नहीं नॉन एमबीसीएस होते हैं। ठीक है डिजेनरेटिव होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ड्यूल नेचर होता है यूजी का। ठीक है ये सब चीजें पढ़ी। फिर ये पढ़ते साथ ही हमने म्यूटेशंस पढ़ी, पॉइंट म्यूटेशन, डिफरेंशियल म्यूटेशन, वो हमारा पार्ट पूरा हो गया था। ठीक है हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि इनको लाने का मन करता है तो टीआरएनए लेकर आता है। फिर हमने क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ा था टीआरएनए का। टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ने के बाद हमारे किसमें ट्रांसलेशन पे पढ़े हमने चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए पढ़ा हाल फिलहाल में। देन वी मूव टू द ट्रांसलेशन प्रोसेस। फिर हमें ट्रांसलेशन प्रोसेस को पढ़ते रहे 2 क्लास में, लास्ट क्लास में खत्म किया लास्ट क्लास में। ठीक है देन वी मूव टू द लैक ओपेरॉन में सब पढ़ा। तो सेंट्रल डोग्मा खत्म हो गया। यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा की एप्लीकेशन में देखिए। ठीक है नाउ वी आर गोइंग to the application part of this chapter, and that is the human genome project. And that is what? That is the Human genome project. okay. Write down the heading: human genome project.
ये अब जो टॉपिक बचा हुआ है ना, इसको आपने क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि इसमें समझने का कुछ नहीं है। आप मेरे मुंह से कुछ बातें सुन लो, ठीक है, आपको चीजें याद हो जाएंगी, बाकी चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा या खुद से लिख लेना, एंड दैट विल द सेम थिंग दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, मतलब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपको पढ़ाने के लिए, कोई प्रोसेस नहीं है समझाने के लिए। दिस ऑल आर द फैक्ट्स दैट यू हैव टू रिटेन और रिमेंबर व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, आपने इसको यहाँ पर सुनना है और याद रखना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। ठीक है, क्या है, यूएस का एक डिपार्टमेंट था, ठीक है ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू करा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू करा। कब? 1990 में। कब बोलो यार, कब? 1990 1990। आपके जन्म से कितने साल पहले? 14 साल 13 पहले। सर 14 साल 14 साल पहले, ठीक है ना, मेरा जन्म से 3 साल पहले। ठीक है, तो 1990 में। अब कुछ लोग हिसाब लगा रहे हैं सर कितने साल के हो गए। अबे भाई ये पढ़ लो यार। ठीक है, 1990 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा यार सर 28 27 अभी हुआ नहीं, 28 ओके जस्ट टू डिस्कस। सर आपने मंथ नहीं बताया, कौन से बताया? मंथ में? बर्थडे आपने मंथ नहीं बताया। पार्टी दोगे मेरे को, ये बताओ पहले। हाँ जी भैया जरूर। ठीक है, बता दूंगा जब आएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना होता भैया, पहले बताओ ना, हमें भी तो तैयार रहना चाहिए। तैयारी करोगे तो यार फिर हाँ जी भैया। सरप्राइज नहीं रह जाएगा ना। मैं बता दूंगा कि मेरा बर्थडे आने वाला है, आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे, फिर सरप्राइज दो कि सर आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू। हमें किसी को सर तो जब लगेगा डेट सर सर पता कि ही नहीं है आज सर कैसे बर्थडे आपको है। विश करेंगे। दैट इज अ टास्क दैट इज गिवन टू यू। ओके, दैट इज अ टास्क, आपको पता लगाना है। ठीक है, सर इट इज इन नवंबर। हाँ नवंबर में है। बेटा, जो कितने चालाक बच्चे हैं, सितंबर तो निकल गया पूरा पूरा। ये सब हाँ, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, तो बच्चे दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा, अक्टूबर बता देते हैं, दिसंबर बता देते हैं, नवंबर पूछ लेते हैं। अबे भाई यहाँ जाओ। ठीक है, 1990 1990 में, ठीक है, क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करा गया। इन्होंने बोला ह्यूमन का जो डीएनए है, क्या है जो ह्यूमन का डीएनए, हाँ या ना? ठीक है, यस सर। शिवांगी बेटा तुम जाना, आपसे तो मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं नीचे पर्सनल चैट में। ठीक है, डीएनए, इन्होंने कहा डीएनए जो है भैया, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कोई बता सकता है कितने बेस पेयर हैं डीएनए में? तो बोलो, अरे पढ़ा रखा है, ह्यूमन 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 Yes, sir. सेल में से ह्यूमन डीएनए निकालोगे, कितने बेस पेयर होंगे उसमें? मार पड़ेगी खींच खींच के। ह्यूमन डीएनए बेस पेयर होते हैं 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर। कितनी वाली पढ़ाई वाली बात? हाँ लावण्या, क्या सर? कितनी वाली पढ़ाई वाली बात? 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर। सर जब आपने पढ़ाया था तब लिखवाया भी था, सॉरी। लिखवाया भी था, ऑफ कोर्स लिखवाया था, तो मैं पूछ रहा हूँ तो बता कितने मेरे को, कितने बेस पेयर हैं? 6.6 into 10⁻9 9 है। हाँ 9 बेस है। 9 है, हाँ यस सर 9 है। ठीक है। अब पर सुनो, ये तो ह्यूमन सेल जो है, ये तो भाई 2n है ना, क्या है ये तो, बोलो, 12 डिप्लॉयड है। ठीक है, मतलब कि हमें 2n के बारे में पता लगाने की जरूरत नहीं है, 2n के बारे में पता लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम आधा ही पता लगा लें तो आधा तो खुद ब खुद मिल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर भाई 46 क्रोमोसोम्स के बारे में पता लगाने की जरूरत नहीं है ना, 23 के बारे में पता लगा लो, बाकी 23 तो क्या है, उसी कॉपी है। ठीक है, यस यस सर। अगर मुझे बताओ चावल में से कंकड़ अलग करने हैं तो कैसे करेंगे? सर चावलों को छानेंगे। चावल अलग करते हैं और कंकड़ अलग करते हैं, है ना? यस सर यस सर। सर बस कंकड़ अलग बनाते- करेंगे, चावल वही रहेगा। कितने तेजस्वी बालक है हमारे, सर चावलों को छान लेंगे ना, अपने आप ही कंकड़ नीचे निकल आएंगे। इतना दिमाग तो मेरे पास है ही नहीं। अबे नालायकों, दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे, सिर्फ एक को अलग कर देंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा, है ना? यही तो सर Yes, मैं sir. कह रही थी। यस सर। ये नहीं कह रहे थे तुम लोग, कह रहे थे सर दोनों को अलग अलग कर लो। सर मैंने कहा था कि बस सर कंकड़ तो अलग हो करेंगे, तो चावल वही दोनों रहेगा। जाएंगे। ठीक है ठीक है, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, आओ देखो। यस सर देखो भाई,
पूरा का पूरा डीएनए को पता लगा नहीं, आप क्या करो, आप आधा डीएनए पता लगा लो, ठीक है। तो अगर टोटल बेस पेयर 6.6 है, ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन डीएनए की, तो अगर मैं हैप्लॉइड की बात करूँ, उसकी बात करूँ मैं, बोलो हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल, जैसे कोई भी ले लो, ह्यूमन स्पर्म ले लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो स्पर्म क्या है, स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है, ठीक है। इसमें आधे डीएनए होंगे, अरे हाँ या ना, एन होगा ना ये, Yes, sir. यस सर 23 क्रोमोसोम्स होंगे इसमें, ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स पे कितने बेस पेयर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने रहेंगे? सर 3.3 Half. 10⁻⁹ 9 बेस पेयर ठीक है। तो सर ये तो बड़ा साल है, मतलब कितने हैं ये, अगर इसको देखेंगे तो मोटा मोटा 3.3 बिलियन बेस पेयर है, कितने बेस पेयर है, 3.3 बिलियन बेस पेयर Base pair. अगर ना आपको 10⁻6 क्या होता है, 1 मिलियन, Yes, Yes. sir. 10⁻9 मिलियन, बिलियन और 10⁻12 ट्रिलियन। रहने दो, बहुत ऊपर की बात की है, रहने दो, ठीक है। चलो, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भैया देखो, ये तो हमें पता है कि इतने बेस पेयर हैं, और ये बेस पेयर कौन से हैं, ये मतलब इनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है। समझ में बात को, इन्होंने बोला देखो ये 23 क्रोमोसोम्स है, ह्यूमन का जीनोम है, क्या है, ह्यूमन का जीनोम है। जीनोम का मतलब होता है a set of all genes, क्या मतलब होता है, a set of all, All Genes. genes. ठीक है। या तो आप बोल दो कि जीन का पूरा पूरा एक सेट को जीनोम कैसे कह देते हैं, ठीक है, या हम बोल देते हैं a set of all क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का एक सेट, मतलब कि 22 प्लस x या 22 प्लस y, समझ Y. आया बात? अरे हाँ या ना, यस सर ठीक है। तो मैंने बोला हमें इन 23 क्रोमोसोम्स जो हैं, इनका हमें क्या करना है, इनकी हमें सीक्वेंसिंग करनी है, मतलब कि कहाँ पर ए है, कहाँ पर जी है, कहाँ पर टी है, या कहाँ पर सी है, ये हमें पता लगाना है, ए टी जी सी, ए जी जी सी टी सी जी, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ना, ये मुझे सीक्वेंस पता लगा के दो, ये क्या करके दो मुझे, सीक्वेंस पता लगा के दो। इनके ऊपर एक बॉस रहा होगा, इनका जो डायरेक्टर होगा इस प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसने अपने बंदों से कहा होगा कि भैया जाओ और सीक्वेंस का पता लगा कर कराओ। तो सारे साइंटिस्टों की टीम क्या कर गई होगी, भाग गई होगी और पता लगाना शुरू कर दिया होगा। यही हुआ होगा ना हर्षनीत, हाँ या ना? यस सर चलो मान लेते हैं कि यही हुआ, ठीक है। अब यही हुआ तो पता लगाना तो बहुत आसान है ना। जैसे डीएनए को नो ऐसे सर माइक्रोस्कोप में, तो यहाँ पे ए बैठा हुआ पाएगा, मैं हूँ ए, मैं हूँ नो जी, सर ऐसा नहीं होगा अरे भैया मैं टी हूँ, मेरे बारे में भी लिख लो, ऐसे ऐसे हो रहा होगा। नो सर कोई ना No. कोई टेक्निक निकाली गई होगी इसको पता लगाने के लिए, यस सर Yes, sir. ठीक है। तो पहले टेक्निक बनाई गई होगी, ठीक है, उसके बाद डीएनए की सीक्वेंसिंग करी गई होगी। तो कितने साल लगे होंगे इसको करने में, 1-2 साल, है ना? नहीं सर 2003 में कंप्लीट हुआ है। हाँ, तो भैया शुरू तो कब हुआ था, सर 13 इयर्स 1990 में कंप्लीट होने लगे तो 13 साल, ये कंप्लीट हुआ कब, 2003 3 में. 2003. 13 साल लग गए जो कंप्लीट होते होते, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। Yes, sir. और जब ये कंप्लीट हो गया तो उसका रिजल्ट आए होंगे, हाँ या ना? और रिजल्ट आने के बाद इसमें से डेटा निकला होगा, क्या निकला होगा इसमें से, बोलो। डेटा Data. डेटा निकला होगा इसमें से, है ना। अच्छा, तो पता है आपको कि कितना डेटा निकला इसमें से, इतना डेटा निकला, इतना डेटा निकला P300 books. कि हमें ना साइंस की एक नई ब्रांच बनानी पड़ गई इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए। उस ब्रांच को कहते हैं क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्या कहते हैं उसको, बायो Bioinformatics. इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the विद डीएनए with the sequence of DNA, with the sequence of DNA, ठीक है। यहाँ पर कि डीएनए का सीक्वेंस कितना है, किस डीएनए के सीक्वेंस में कौन सी जीन एलोकेटेड है, कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी टैगिंग ठीक से हो रखी है कि नहीं हो रखी है, वो आरएनए बनाती है कि नहीं बनाती है, अगर एमआरएनए बनाती है तो कौन सा पार्ट उसका सिस्ट्रॉनिक पार्ट है, कौन सा नॉन सिस्ट्रॉनिक पार्ट है, ठीक है। अगर ये एमआरएनए बनाएगी तो इस जीन का कौन सा वाला हिस्सा होगा जो यूटीआर में रह जाएगा, जो पूरी नहीं हुआ कभी, कौन सा इसका प्रोटीन बनाएगा, तो बहुत सारी चीजें होती है ना। अरे हाँ, यस सर ठीक है, तो सारी बातें पता लगाई गई। तो जब इसको शुरू करा गया था ना, तो इसके पीछे करने के पीछे क्या थे, कुछ गोल्स थे, क्या थे, कुछ गोल्स। गोल्स Goals. क्या गोल्स थे इसको करने के पीछे,
पहला गोल तो था कि जितनी भी जीन्स है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, 20,000 से 25,000 जीन्स लगभग होंगी बॉडी में, ठीक है, क्योंकि माना जाता था कि 3 लाख जीन्स होती है बॉडी में, ठीक है, बट इनके साइंस को लगा क्या 20-25,000 के आसपास जीन्स होंगी, ठीक है, हम उनका पता लगा लेंगे। तो पहला गोल तो क्या हो गया कि जीन्स का पता लगाना कि भैया जितनी भी 20-25,000 जीन्स है उन सबको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। दूसरा मेजर काम ये था, ये तो तब होगा ना सीक्वेंस पता करना। जब पूरे सीक्वेंस हो जाएंगे, अरे हाँ या ना, ठीक है, Yes, sir. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से मान लो कानपुर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, कानपुर, या यहाँ से मैं जा रहा हूँ मान लो आगरा जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कोई गया कभी आगरा कार से, Yes, sir. घूमने तो जाते ही होगे, ठीक है। तो नहीं मैं सर, बोल नहीं रहा हूँ गए। कि मेरा काम मैं आगरा से जा रहा हूँ क्योंकि मैं रास्ते में टोल पता लगाऊंगा कितने टोल आ रहे हैं। तो ये बात मुझे कब पता चलेगी कि कितने टोल आ रहे हैं, जब मैं आगरा, सर जब आगरा पहुंच जाऊंगा। जाओ जाओगे। हाँ ठीक है। तो जीन्स 20,000 25,000 तब पता चलेगा ना, मैं पूरा पूरा क्या करूंगा, सीक्वेंस कर लूंगा। तो सेकंड जो गोल था इसका वो था टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक द ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन डीएनए को जो बनाते हैं, ठीक है। ये दूसरा गोल था, ठीक है। तीसरा गोल क्या था कि सीक्वेंस कर लेंगे और जो डेटा होगा वो फेंक देंगे फिर हम, है ना, ये स्टोर करेंगे कहीं पर, स्टोर स्टोर करेंगे। करेंगे। स्टोर करेंगे ना, है ना। तो स्टोर करेंगे इन्फॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर करेंगे। तो स्टोर करने के लिए डेटा बैंक बनाने पड़े, क्या बनाने पड़े, डेटा बैंक, उनको बोला गया डेटा बेसिस, क्या बोला गया, डेटाबेसेस। डेटाबेसेस। Database. डेटाबेस वो अमेरिका के पास है, आज भी इसको बोला जाता है क्या, एनसीबीआई, क्या बोला जाता है, एनसीबीआई। मतलब कि नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नो सर। नो इसका सर। मतलब है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, क्या है फुल फॉर्म, नेशनल सेंटर फॉर बायो Center for Biological Information. information. आप जो भी इंटरनेट पे कोई भी आप आर्टिकल ढूंढते हो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो आपको इसी साइट पे मिलता है, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। आप डाला एनसीबीआई या कोई भी आप एक्सट्रैक्ट डाला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो आपको वो डायरेक्ट कर देगा एनसीबीआई की साइट पे जितने भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा, ठीक है, क्योंकि ये एक देश का काम नहीं था, ये बात बात क्या थी, एक देश के बस की नहीं थी, क्योंकि पैसा बहुत लग रहा था, क्या लग रहा था, पैसा बहुत लगा। बहुत लग रहा था। बहुत लगा था। अरे कितना पैसा लग रहा था, एक कॉस्ट के हिसाब से 100 बिलियन यूएस डॉलर। काउंट करने के लिए एक बेस करके लिए $3 करते, कितने डॉलर लगे थे, $3. कितने बेस है, कितने, 33 बिलियन बेस पेयर्स। तो 3.3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9.99, मतलब कि 10 बिलियन डॉलर। कितने पैसे लग रहे थे, 10 बिलियन डॉलर। मान लो 3 बिलियन बेस पे है, मान लो मोटा मोटा, तो कितने होगा 9 बिलियन यूएस डॉलर। यूएस डॉलर। ये तो बहुत पैसा है, ठीक है, तो और लोगों से लेना पड़ेगा। तो थोड़े से साइंटिस्ट यूरोप के आ गए, यूरोपियन साइंटिस्ट आ गए, ठीक है, ईयू यूरोपियन यूनियन के साइंटिस्ट, पहले ही चलता था क्या, यूरोपियन यूनियन, इन्होंने कहा कि हम अपना बैंक बनाएंगे, तो उन्होंने बनाया अपना एक और बैंक को बोला जाता है ईयू, यूरोपियन बैंक ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे ही है ये, ठीक है, यूबीआई, ठीक है। सबसे आगे थे जापानी, कौन सा सबसे आगे, जापानी। तो जापानी अपना डेटा लेकर आकर उन्होंने बोला इन्फॉर्मेशन तो भैया हम भी अपने पास स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उस डेटाबेस का नाम रखा गया डीडीबीजे, क्या रखा गया, डीडी DDJ. बीजे। डीडीएनजी कौन बोला, मतलब डीडी बीजे। अरे भाई पिक्चर से घर आ जाओ, ये पढ़ लो, ठीक है। इसका मतलब है क्या, बिल वाले दुल्हनिया नहीं सर। घूम जाएंगे। नहीं सर। डीएनए डेटाबेस, डीएनए डेटाबेस ऑफ जापान, क्या था, डीएनए डेटाबेस ऑफ जापान। जापान। Japan. भाई यूरोप है, ठीक है। ऐसे जर्मनी वाले अलग आए थे, ठीक है, सब अलग आए थे, इंडिया वाले नहीं पहुंचे थे। 1990 में तो इंडिया की हालत पतली हो रखी थी, याद है ना आपको, पैसे तो थे नहीं हमारे पास उस टाइम पे, हमने क्यों करने के लिए वो इन्फॉर्मेशन निकालने के, पढ़ लेंगे, ये तो करते हैं हमेशा, ठीक है। यस सर। बनाने के लिए इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट तो कोई बनाना थोड़ी इंडिया में, आप बनाओगे क्या प्रोजेक्ट, नहीं बनाओगे क्या, कोशिश करोगे, कोई और बना लेगा, थोड़ा चेंज करें, कॉपी करके अपने में लिख लेंगे उसको, नंबर तो मिल ही जाने हैं, यही तो एडिट होता है हम इंडियंस का, ठीक है। हम इनिशिएटिव Yes, sir. करने के लिए हैं,
सर सही है, यही होता है। सर सही बात है। तो मुझे तो पता ही है, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा मेरे को बता रहे हो सही बात है? अबे मैं तो खुद बता रहा हूँ पहली बात। सर सही बात है। अरे ये बोल सर हम अप्रिशिएट शर्म कर रहे हैं करो, कि ये हाँ बोलो। आप सही इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सही बात है ये। शर्म आनी चाहिए, यही कहना चाहिए कि सर हम ऐसा नहीं करेंगे सर, हम खुद मेहनत करके इन्वेस्टिगेटिव वीडियो बनाएंगे। सर जब किसी और से बनवा लिया तब क्यों मतलब हाँ कहना, झूठ ठीक है, क्यों बोलना। ठीक है। चलो भाई ये हो गया कि हमारे पास डेटा बैंक, ठीक है ना। तीसरा गोल था ये था, ठीक है। सर चौथा सिर्फ गोल 3 ही देश लगे थे बनाने में इसको। क्या? सर सिर्फ 3 देश के साइंटिस्ट आए थे। नहीं नहीं, बहुत सारे देश थे यार, है ना। इंडिया के भी रहे होंगे, पर इंडिया के जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो एक्चुअली अपने आप को अमेरिकन ही मानते हैं, ठीक है। नासा में 30% साइंटिस्ट पता है आपको इंडिया के हैं, पता है आपको पहली बात? नो ठीक है। सर। यस सर। नासा में जो 30% साइंटिस्ट हैं वो इंडियन हैं, ठीक है। नासा अमेरिका को ना दो ही देश चला रहे हैं, एक इंडिया और एक इजराइल, ठीक है ना। वहाँ पे जो बिजनेस है उसको चला रहा है इजराइल, और वहाँ पे जो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन चला रहा है इंडिया। अमेरिका यस सर, वहाँ पर डॉक्टर्स भी काफी इंडियन हैं। जितने भी हैं डॉक्टर इंजीनियर सब भाई इंडिया के ही हैं। इंडिया की बेस्ट टीम वहाँ पे पहुंची हुई है, एम्स के डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, आईआईटी के इंजीनियर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। और बाकी जीएनयू में से पीएचडी करके पीएचडी वाले लोग पहुंचे हुए हैं वहाँ पर, वो रिसर्च कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो आगे आओ, और क्या गोल था, ठीक है। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। अब इतना सारा डेटा निकाल लिया, इसको पढ़ेगा कौन बैठ के? कोई ऐसा माइग्रेन क्लास लेके तो पढ़ेगा नहीं, तो टूल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से होता है तो नए नए टूल्स बनाए गए। जैसे एक टूल्स बनाया गया ब्लास्ट एक्स, क्या बनाया गया? ब्लास्ट एक्स। एक टूल बनाया गया क्लस्टल एक्स। ये टूल्स थे, आप इसको ग्रेजुएशन में पढ़ोगे कभी जाओगे तो, ठीक है। मतलब जाओगे तो सभी लोग जाओगे, मतलब अगर आप इस फील्ड को आगे परस्यू करोगे तो पढ़ोगे सब चीजों को, ठीक है। ब्लास्ट एक्स क्लस्टल एक्स टूल्स है, यहाँ पर आप डीएनए का अगर एक सीक्वेंस डाल दो तो वो टूल बता देता है कि इसमें कोई जीन प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब बिना आप हाथ से टाइपिंग कर दोगे ना ए जी जी टी सी जी 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 ऐसे करके, तो बता देगा कि इसमें जीन हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, ठीक है। ये टूल्स है, बहुत अच्छे टूल्स है, ठीक है। अलाइन करते हैं, एक अलाइन एक्स टूल है, ठीक है। फिर क्या था कि इससे जो इन्फॉर्मेशन निकली भाई, मुझे पता चला कि यार मेरे पास जो वाली जीन थी, इस जीन में जो इतना वाला हिस्सा था ना, ये वाला हिस्सा है, मतलब ये जो डीएनए इस जीन में, ये जो डीएनए का ये वाला हिस्सा है ना, क्या करता है, अगर इसको इसको ज्यादा पेन मिले, इसको ज्यादा क्या कहते हैं इसको, व्हाट डू यू से, इसको ज्यादा कोई तंग करे तो क्या कर जाता है, ये म्यूटेट कर जाता है, अंडर स्ट्रेस क्या करता है, म्यूटेट करता है, एंड इट बिकम्स, इट मेक्स द सेल कैंसरस। क्या कर देता है ये सेल को, नहीं बोलो, कैंसरस बना देता है। कैंसर। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली तो इस इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, हम छुपा के रख लेंगे अपने पास ही, किसी को नहीं देंगे, या देंगे? सर देंगे। देंगे, ठीक है। तो इससे जो इन्फॉर्मेशन निकल रही है उसको हम अदर जो हमारे पास इंडस्ट्रीज है उनके साथ क्या करेंगे, हम इसको शेयर करेंगे। तो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, ठीक है। सोचो आपने इस इन्फॉर्मेशन को बायोकेमिस्ट्री में दे दिया, तो हो सकता है कि कोई बायोकेमिस्ट इस सीक्वेंस के अपोजिट एक ऐसा सीक्वेंस बना ले जो इस सीक्वेंस को साइलेंस कर दे, जिससे ये जीन कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाए और बंदे को कैंसर ही ना हो। ऐसा हो सकता है ना। यस इसको सर। आगे यस सर। मैं पढ़ाऊंगा आपको बायोटेक्नोलॉजी वाली चीज, ठीक है, कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मतलब बढ़िया चीज थी वाली, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत एक बार एक अलग गोल ये भी था कि हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं जो ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, ठीक है ना, कुछ एथिकल इश्यूज जो लोग क्रिएट करते हैं, लीगल इश्यूज क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, सोशल इश्यूज जो लोग क्रिएट करते हैं उसको ELSI कहते हैं, ठीक है ना। एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज को क्या करेंगे, ये काम आगे बढ़ेगा तो अराइज भी होंगे तो उनको क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे, एड्रेस करेंगे। समझ रहे हो ये बात को, ठीक है। टू एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, समझ रहे हो। तो दीज वर द गोल्स। क्या थे ये? सर लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझ आया, ये एथिकल वाले इश्यूज, क्या? ये इश्यूज वाला पॉइंट यस नहीं सर, ये वाला समझ पॉइंट आया। सर मेरे को नहीं समझ में आया। अच्छा, कैसे समझो आप, ये जो डीएनए है, डीएनए में जीन्स है यस ना, यस सर। ये जीन्स हमने खुद बनाए हैं या
कुदरत से में मिले हैं या भगवान से या जिससे भी चीज से में मिले हैं? सर कुदरत नेचर से मिले हैं। गॉड के नेचर से या कुदरत से, भगवान से में मिले, ठीक है। अभी मैं छेड़छाड़ कर दूं, मैं बोल दूं कि मुझे वाला जीन नहीं चाहिए, ठीक है। इस जीन से क्या होता है, इस जीन से ना इंसान की जो आईज है वो ब्लैक हो जाती है। कोई कह रहा नहीं मेरे को ये वाली जीन नहीं चाहिए, जीन में चेंज कर दो, इसमें ना टी की जगह ना ए लगा दो, एक काम करो तो मेरी आंखें क्या हो जाएंगी, ब्लैक से ब्लू हो जाएंगी। तो कोई दिक्कत है करने में, इसको कर देंगे। अरे हाँ है ना। सर कैसे होगा? अब बन गए, अब ऐश्वर्या राय आंखें कैसी हो गई आपकी, ब्लू हो गई। सर ऐसा कैसे हो जाएगा सर? अच्छा बेटा न्यूज सुना करो, सिंथेटिक बेबी का नाम सुना है? कैसा? कोई भूल जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जीन्स में चेंजेस करे जा सकते हैं। अभी आपको शायद सुना होगा कि आज से 3 साल या 2 साल पहले, 3 साल पहले चाइना में एक साइंटिस्ट था, उसने डिजाइनर बेबी प्रोड्यूस करे थे। उन्होंने बेबी के अंदर यस जो बच्चे सुने थे, थे। सुन तो लो पहले मेरी बात को, ठीक है। उनको HIV रजिस्टर बना दिया था, उनको कभी जिंदगी में एड्स होगा ही नहीं, क्योंकि HIV का वायरस में काम ही नहीं करेगा। समझे मेरी बात को? यस सर। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ऐसे बेबी बना दिए थे। तो कैसे बनाए थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। उन्होंने जीन्स को मैनिपुलेट कर दिया था, जो जीन्स पे आकर एक्चुअली HIV का वायरस अटैक करता है ना, उसने उस जीन्स को हटा दिया था, उसकी बॉडी कर लिया अटैक। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। यस सर। आर्टिफिशियल बेबीज थे, आर्टिफिशियल मतलब टेस्ट ट्यूब बेबीज थे वो, ठीक है। और उसने क्लेम किया था कि बोला था कि आप इसको HIV से अटैक करवाओ, इन्फेक्ट करवाओ, तो ये बच्चे इन्फेक्ट नहीं होंगे। 2 बच्चे थे वो, ठीक है। उसको चाइना ने फिर उसमें डाल दिया, सलाखों में डाल दिया, ठीक है। सलाखों मतलब उसको जेल कर दी, उसकी लैब का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें चाइना में होती रहती है। चाइना क्योंकि बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। कोरोना वायरस आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। तो यही है भैया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो किसी के में मतलब चलो वो 2 बच्चों को HIV नहीं होगा, पर बाकी जो बच्चे हैं भाई उनको तो HIV हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? यस यस सर। तो ये तो आपने क्या कर दिया, ये तो फिर आपने कुदरत को चैलेंज कर दिया एक तरह से। आपने तो कुदरत के नियमों में बदलाव करना शुरू कर दिया, है ना। अरे आपको क्या, Yes, सर। आपको एक बार पता क्या लग गया कि ये वाला जो जीन है, ठीक है, ये वाला जीन क्या करता है, ये वाला जीन हमारी भूख के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने करा, आपने उस बंदे की बॉडी में ऐसे 4 दिन और जोड़ दिए। अब क्या करेगा वो? ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा खाने से खाना खाने से क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हट्टा हो मोटा हो जाएगा, जाएगा। फाइट में लड़ेगा तो जीतेगा फाइट। तो ऐसा करना सही है? अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे देखें तो सही है, पर बड़े लेवल पे देखो, अगर मान लो दुनिया में ऐसे 1 लाख लोग हो गए तो क्या होगा? समझ रहे हो बात को? 1 यस लाख लोग 4 लाख लोग खाना खा जाएंगे, तो वेजिटेशन का लेवल क्या हो जाएगा, वेजिटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वेजिटेशन कम होगी तो बाकी 4 लोग जो थे वो भूखे मरेंगे। यस आप सर। दुनिया के नियमों से क्या कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। ये राइट आपको किसी ने दिया नहीं है कि कुदरत के नियमों से खिलवाड़ करो। समझ रहे हो? इसको कहते हैं क्या, एथिकल इश्यूज। क्या कहते हैं इसको? एथिकल। एथिकल इश्यूज। ऐसे करने से सर डेथ रेट भी तो सर फिर कम हो जाएगा। जब सर HIV कॉज ही नहीं होगा तो फिर सर डेथ रेट में भी सर गिरावट आ जाएगी। हाँ वो सारी चीजें होंगी, सेकेंडरी चीजें इधर वो, ठीक है। पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देगा। तो क्या ऐसा करना ठीक है, नो सर। या आप एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करी, हो सकता है 10-12 चीज चेंज हो गई हो। आप उम्मीद करते हैं कि भाई बच्चा पैदा इंसान का होगा, कोई दानव राक्षसी पैदा हो गया, ठीक है, उसने 100-150 लोगों को मार दिया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर टेक्नोलॉजी। वो साइंटिस्ट होगा जिसने वो आप म्यूटेशन की जिम्मेदार थी। होगे उसके लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपने किया है। समझे मेरी बात को? अबे बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो ठीक है। तो दिस वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, ठीक है। हाँ बोलो। सर जैसे हम ह्यूमन जीन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो मॉडिफिकेशन खुद भी होता है नेचर से? हाँ उसको भी म्यूटेशन कहते हैं। सर तो मतलब वो किसी भी एज में हो सकता है या फिर जरूरी कि इन्फेंसी में हो? क्या 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 वो किसी, सर वो किसी भी एज में मॉडिफिकेशन हो सकता है, फिर इन्फेंसी में ही होना चाहिए? तो मतलब जब इन्फेंट हो तभी वो होते हैं किसी कभी भी भी? एज में हो सकता है, कैंसर हो सकता है, क्या मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। तो जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो हाँ हाँ किसी भी एज में हो सकते हैं? हाँ किसी भी एज में हो सकते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, जीन में बदलाव ना? यस सर। हाँ तो जीन में बदलाव तो बेटा किसी भी एज में हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ठीक है। ज्यादा चांसेस होते हैं जीन में बदलाव होने के, कब? जब गैमेट बन रहे होते हैं। जब क्या हो रहा होता है, गैमेट बन रहे होते हैं, ठीक है। पर जब वो गैमेट जैसे स्पर्म्स बनते हैं मान लो ह्यूमन की बॉडी में,
ठीक है। तो स्पर्म बनने के बाद क्या हुआ, स्पर्म में के अंदर चेंज आ गया, ठीक है। तो वो चेंज आपकी बॉडी में थोड़ी नजर आएगा, वो तो जब आप उसको आगे पास कर दोगे, जो फीटस बनेगा, बेबी बनेगा, ये चेंज तो उसके अंदर नजर आएगा। समझे मेरी बात को? Yes. ठीक है, यस। हाँ भाई, और बोलो, कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो भाई सवाल लिखो होमवर्क के लिए। डिफाइन डिफाइन जीनोम, डिफाइन जीनोम। और एक तरह आना सवाल, ठीक है, वरना मार पड़ेगी, ठीक है। डिफाइन जीनोम। क्वेश्चन नंबर 2, what is human genome project? What is human genome project? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, why HGP मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, why HGP was called as a mega project, लिखा? Yes, sir. ठीक है, नंबर कितने हो गए? सर नंबर 4 आप ये लिखवाओ। हाँ, नंबर 4 लिखो, नंबर 4 लिखो। write the goals of HGP, write the goals of HGP। लिखा? Yes, sir. ठीक है। नंबर 5, write the silent features of human genome project। सुन लो, ये मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, पर आप इसको लिख कर लाएंगे, ठीक है, ठीक है। राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ Yes, sir. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और भाई सुन लो मेरी बात को, हमने ना वेडनेसडे को तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर ना हमने इस वीक में चैप्टर खत्म कर देना अलॉन्ग विद द क्वेश्चन डिस्कशन, ठीक है, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो हमने खत्म करना है, Yes, sir. ठीक है। उस पे आ जाओ। ये तो हो गए वो वाले सवाल, कौन से वाले जो कर आने अपने कॉपी में, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ उस वाले पार्ट पे, अब अपने कौन से पे, असाइनमेंट पे आ जाओ अपने। अब सर आप असाइनमेंट मेरे को भी शेयर कर देना। बेटा अभी तो शेयर नहीं हो सकता, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है उसकी, क्योंकि मैं आपको दे दूंगा असाइनमेंट, ठीक है। ओके सर हाँ सर अभी जो सर आपने क्वेश्चन लिखवाया सर, इसको एनसीईआरटी में से लिखने सारे? हाँ, और कोई बुक है आपके पास? नो सर। मेरा असाइनमेंट है। यस सर है। हाँ, तो उसमें से लिख लेना, ओके। वो भी तो एनसीईआरटी है तरह से, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन काफी दे दिए मैंने आप लोगों को, काफी सारे दे दिए ना आजकल क्वेश्चन। अरे हाँ ये ना, बीच बीच में से Yes, दिए sir. थे। बीच बीच में दिए थे ना, चलो कुछ और दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। माफ करो, और सवाल क्वेश्चन नंबर 6, 8 सर नंबर बोलना एक बार। भाई, पेज नंबर 163, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस टॉपिक 2, ये वो है सीबीएसई वाले क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, बोर्ड यस वाले क्वेश्चन, ठीक है। मिल गए? सर। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 6। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 को मार्क करना इंपॉर्टेंट। फिफ्टीन 15 क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था ना 23s पार्ट जो होता है 50s राइबोसोम का, याद है? यस Yes, सर। sir. क्या करता है वो? लावण्या, देखो मार पड़ेगी।
अबे भाई पेप्टाइड मोड बनवाता है, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, Yes, sir. ठीक है ना, उसका एक नाम होता है, उसको कहते हैं राइबोजाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस पर डिपेंडेंट है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 मार्क करो। कर दिया। ठीक है, 16 को सर्कल कर लो, अभी मत करना, मेरे को याद दिलाना, मैंने डिस्कस करना है सर। 16 करना नहीं है, इसको सर्कल कर लो, ठीक है। 17 करना है। 19 पहले दे दिया था, 19 हाँ जी भैया। ठीक है। ट्वेंटी सेवन अभी मत करो, 27 अभी मत करो। ठीक है, अभी इतना ही रुक जाओ बस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ अपने उस पे, इस पे एमसीक्यू पे, एमसीक्यू कॉर्नर पे, ठीक है। कितने दे दिए थे इसमें एमसीक्यू कॉर्नर में मैंने? भैया पेज नंबर बता दीजिए एक बार। बेटा पेज नहीं है मेरे पास, ठीक है। आप बताओ किस पेज पे है वो। सर मैंने देख कितने असाइनमेंट्स आप सभी को दे दिए, मैंने सारे असाइनमेंट्स, ठीक है। मेरे पास अपने लिए भी खुद एक सेट नहीं बचा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कौन सा है, ये तो मेरे पास दूसरी बुक में पड़े हुए थे, ये तो मैंने वहां से बता दिया आपको। हाँ, मुझे तो लाइक सर ट्रांसक्रिप्शन तक करवा देता, उससे पहले ट्रांसक्रिप्शन से पहले वाले टॉपिक तक करा देता। ट्रांसक्रिप्शन से पहले वाले सारे हो गए थे, हाँ ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाले सवाल जो है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाले कौन से? ट्रांसलेशन है और लैक ऑफ ग्राउंड है। मेरे ख्याल से 20 सवाल होंगे मिला के, गिनना एक बार, मतलब लगभग देना कितने से कितने तक है क्वेश्चंस, बताना शाबाश। भाविका सुन लो, ये जो हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना बच्चों को, ठीक है, यस ठीक है ना, ये क्वेश्चन एमटीजी से ही है, ठीक है। तो आपके पास ओके एमटीजी है ना, यस तो आप ट्रांसक्रिप्शन और लैक ऑफ ग्राउंड के क्वेश्चन ना वहां से कर लेंगे, ठीक है। ओके कम से कम इतना तो कर लो, ठीक। और देखो सीबीएसई वाले क्वेश्चन है वो तो आपको मैंने बात के साथ साथ तो उनको तो आप करोगे करोगे, ठीक है। तो आपका कुछ मिस नहीं हो रहा है, लिटरली देखा है, ठीक है। चलो हाँ बोलो भाई। सर 42 क्वेश्चन नंबर से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है 94 तक। सारे करने हैं, सारे 43 से 42 43 से जो भी है 94 तक इतने सारे कर दो, सारे मार्क करो, ठीक है। और कर हमने बिना करे बताना, मार पड़ेगी नहीं तो, ठीक। चलो ठीक है भाई, इतने कर लेना। हाँ बोलो भाई। सर आपका सर वॉइस लैग हो रहा था सर, एक बार दोबारा बताना एमसीक्यू कहाँ से कहाँ तक करनी क्वेश्चन है? नंबर 42 से 94 तक सारे करने हैं, और एक मिनट रुक जाओ। लिख लिया? 42 Yes, sir. से 94